Hello everyone. Today's chapter is Indigo. Let's start the summary of this chapter. The author name is Louis Fisher. In December 1916, Gandhi went to Lucknow to attend the annual convention of the Indian National Congress. There were 2,301 delegates and many visitors. A peasant from Champaran, Rajkumar Shukla, asked Gandhi to visit his district. Shukla followed Gandhi wherever he went. In 1917, Gandhi and Shukla boarded a train for Patna. Shukla led Gandhi to the house of a lawyer named Rajendra Prasad. They could not see him as he was out of town. दिसंबर 1916 में गांधी जी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक सभा में भाग लेने के लिए लखनऊ गए थे तो वहां पे अंदाजन 2301 प्रतिनिधि थे तथा कई देखने और मिलने वाले अन्य लोग भी थे। तो चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था। उन्होंने गांधी जी को बोला आप मेरे जिले में मेरे डिस्ट्रिक्ट में आने को कहा। गांधी जी गांधी जी जहाँ पे भी कहीं जाते थे शुक्ला उनका अनुसरण करता था जाता था। 1917 में गांधी जी तथा शुक्ला पटना के जो एक रेल में सफर हुए थे तो मैं एक ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर ले गए थे और वह उससे मिल नहीं पाए क्योंकि वह नगर से बाहर थे। गांधी जी decided to go first to Muzaffarpur to obtain complete information about the conditions in Champaran. He reached Muzaffarpur by train at midnight on 15 April 1917. Professor J.B. Kirpalani received him at the station. Gandhi stayed there for 2 days. The news of Gandhi's arrival and the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecropper from Champaran began arriving there. Muzaffar lawyers briefed Gandhi about the court cases. He chided the lawyers for collecting big fee from the sharecropper. He thought that the low courts were useless for the crushed and fear-stricken peasant. The real relief for them was to be free from fear. तो गांधी जी ने चंपारण की स्थिति जो थी उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करी करने के लिए मुजफ्फरपुर के जाने का बोला कि सोचा कि तुम वहीं चलते हैं और वहीं की सारी स्थिति मालूम करते हैं। तो 15 अप्रैल को 1917 में आधी रात को रेलगाड़ी से मुजफ्फरपुर पहुंचे। तो स्टेशन पर प्रोफेसर जेपी कृपलानी थे। उन्होंने उनका वेलकम किया स्वागत किया और गांधी जी वहाँ पे 2 दिन के लिए ठहरे थे। गांधी जी के पहुंचने पर उनका जो विशेष कार्य जो प्रगति थी उसके विषय में सारे मुजफ्फरनगर को और चंपारण को ये न्यूज फटाफट फैल गई कि पीएसएस से गांधी जी वहां पर आए हैं। और चंपारण के बटाई पर खेती जो करने वाले किसान थे वहां पहुंचने लगे धीरे धीरे। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वकीलों ने गांधी जी को कचहरी में जो चल रहे केसेस थे उनके बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी और उन्होंने वकीलों की बटाई पर खेती करने वाले किसानों को अधिक फीस बटोरने पर धमकाया। तो उन्होंने सोचा कि इन कुचले हुए तथा जो फियर फुल किसान हैं जो भयग्रस्त किसान हैं उन्हें न्यायालय उनके लिए व्यर्थ थे। तो उनके लिए असली राह थी कि वे भय से मुक्त हो गए थे स्वतंत्र हो गए थे। गांधी जी
Then Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts from the secretary at the British Landlord Association. He refused to give information to an outsider. Gandhi said that he was not an outsider. Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Trihut division. The commissioner started bullying Gandhi and advised him to leave Tirhut. Instead of leaving the area, Gandhi went to the Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. A large crowd of people greeted Gandhi at the railway station. It was the beginning of their liberation from fear of the British. A peasant had been maltreated in a nearby village. The next morning, Gandhi started out on the back of an elephant. Soon he was stopped by the police superintendent messengers and ordered to return to the town in his carriage. Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home. Then he served him with an official notice to quit Champaran at once. Gandhi signed the receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. Gandhi received a summons to appear in the court the next day. At 9, Gandhi telegraphed Rajendra Prasad, sent instruction to Ashram and wired a full report to the Viceroy. जब गांधी जी चंपारण में आए उन्होंने जो ब्रिटिश थे वहाँ के संगठन और जितने भी सचिव थे उनको इकट्ठे करने का प्रयास किया और उनको शुभारंभ वहीं से किया। उन्होंने सचिव ने जब भारी व्यक्ति को सूचना देने से मना करते तो गांधी ने कहा मैं भारी व्यक्ति नहीं हूँ। और इसके बाद गांधी जी तिरहुट जो प्रमंडल था उसके ब्रिटिश सरकारी आयुक्त से मिलने गए। आयुक्त ने गांधी जी को तंग करना डराना धमकाना शुरू कर दिया तथा उन्हें जो तिरहुट प्रमंडल था छोड़ देने की सलाह दी कि आप यहाँ से चले जाओ। तो क्षेत्र छोड़ने के बजाय गांधी जी ने चंपारण की जो राजधानी थी मोतिहारी वहां गए और उनके साथ कई वकील भी गए। तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की एक विशाल भीड़ ने उनका स्वागत किया और ये उनके ब्रिटिश शासन के भय से मुक्ति का आरंभ था। तो निकट के एक गांव जो था वहां पे एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, मिसबिहेव हुआ था। अगले दिन गांधी जी ने हाथी की पीठ पर सवार होकर वो वहां गए थे। शीघ्र ही उन्होंने पुलिस जो वहां का अधिकारी था संदेश वाहक भेजा और उन्हें रोका ने उन्हें रोका और तथा उसकी घोड़ा गाड़ी के नगर लौटने का कहा कि आप वहां से वापस चले जाओ। गांधी जी ने इस आज्ञा का पालन किया। संदेश वाहक गांधी जी को गाड़ी में घर ले आए। फिर गांधी जी ने तुरंत चंपारण छोड़ जाने के लिए नोटिस थमा दिया। गांधी जी ने इसकी पावती यानी कि रसीद जो थी सिग्नेचर किए और इस पर लिख दिया कि वे आदेश की अवज्ञा करेंगे। गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में पेश का संबंध यानी कि उन्हें नोटिस भेज दिया गया जो न्यायालय का आदेश था। रात को गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को तार भेजा जो कि एक लॉयर थे। तो आश्रम में निर्देश भेजे तथा वायरलेस जो थी उसे सूचना दी। Thousands of peasants gathered around the courthouse. The official felt powerless. The authorities wished to consult their superiors. Gandhi protested against the delay. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess. He asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. The court started again after a break. The judge said he would not deliver the judgment for several days. He allowed Gandhi to remain at liberty. Gandhi asked the prominent lawyers about the injustice to the sharecroppers. They consulted among themselves. Then they told Gandhi
that they were ready to follow him into jail. Gandhi then divided the group into pairs and fixed the order in each pair was to put arrest. After several days, Gandhi was informed by the magistrate that the case has been dropped. For the first time in modern India, civil disobedience had risen. हजारों जितने किसान थे वो न्यायालय में चारों तरफ से इकट्ठे हो गए थे। जो कर्मचारी थे शक्तिहीन महसूस कर रहे थे और जो प्रशासक अधिकारी थे उनमें जो श्रेष्ठ लोग थे उनका सलाह चाहते थे, परामर्श करना चाहते थे उनसे। गांधी जी ने देरी का विरोध किया और दंडाधिकारी ने कहा कि वे 2 घंटे के लिए अवकाश के बाद उन्हें दंड यानी कि जो भी सजा है उसकी घोषणा करेंगे। तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि वे 120 मिनट के लिए जमानत दे दें। तो गांधी जी ने इनकार कर दिया। तो न्यायाधीश जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने बिना जमानत के ही उनको छोड़ दिया। और विराम के पश्चात न्यायालय जब दोबारा आरंभ हुआ, न्यायाधीश ने कहा कि कई दिनों तक निर्णय फैसला नहीं सुनाएंगे और उन्होंने गांधी जी को मुक्त यानी कि स्वतंत्र रहने की आज्ञा दे दी थी। गांधी जी ने प्रमुख वकीलों से बटाई पर खेती करने वाले जो किसान थे उनके अन्याय जिनके ऊपर हो रहे थे अन्याय उनके विषय में पूछा। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने गांधी जी को बताया कि उनके अनुसरण कर यानी कि कारागार जेल जाने पर को तैयार थे। तब गांधी जी ने उस समूह को 2 जोड़ों में विभाजित कर दिया था। वह क्रम निश्चित कर दिया था जिसमें वे गिरफ्तारी देंगे। और कई दिनों के पश्चात गांधी जी ने दंडाधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि मामला जो है वो समाप्त बंद कर दिया गया है। आधुनिक भारत में ये पहली बार नागरिक अवज्ञा से उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। Gandhiji and lawyer conducted an inquiry into complaints of the peasant. About 10,000 peasants deposed. Documents were collected. Gandhi was summoned by Sir Edward Grey and Lieutenant Governor. He met the Lieutenant Governor 4 times. An official commission of inquiry was appointed. Gandhi remained in Champaran initially for 7 months and then came for several shorter visits. The official inquiry assembled evidence against the big planter. They agreed in principle to make refunds to the peasant. Gandhi asked only 50%. The representative of the planter offered to refund up to 25%. Gandhi agreed. The deadlock was broken. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been forced to give some money and their prestige. The peasant now saw that he had rights and defenders. He learned courage, even justified Gandhi's position. Within a few years, the British planter abandoned their estates. These now went back to the peasant. Indigo sharecropping disappeared. गांधी जी ने और जब वकीलों ने किसानों की शिकायत पर जांच करने की आरंभ की जांच करी तो लगभग जो 10,000 किसान थे वो साक्षी बन गए थे इस बात के। और दस्तावेज जितने भी डॉक्यूमेंट से प्रमाण थे इकट्ठे किए गए और गांधी जी को उप राज्यपाल सर एडवर्ड गेट ने उन्हें बुलाया और जो कि उप राज्यपाल से 4 बार मिले और जांच के लिए एक सरकारी कमीशन भी बनाई गई। शुरू में गांधी जी ने चंपारण में 7 महीने रहे वो और फिर कई बार शमशीर भ्रमण के लिए वो धीरे धीरे आए। सरकारी जांच ने बड़े खेतों के स्वामी जो भी थे उनके विरुद्ध जो थे प्रमाण एकत्रित किए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे और वे सिद्धांत रूप से किसानों को धन लौटाने के लिए सहमत भी हो गए थे। गांधी जी ने केवल 50% मांगा था। बड़े खेतों के जो स्वामी थे प्रतिनिधि थे उन्होंने 25
प्रतिशत लौटाने का प्रस्ताव किया था। तो गांधी जी सहमत हो गए थे और उनका अफरोट समाप्त हो गया था, टूट गया था। गांधी जी ने स्पष्ट किया था कि लौटाई जाने वाली जो राशि की मात्रा है इस तथ्य पे कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदारों को कुछ धन उनके अपनी प्रतिष्ठा देने का विवश होना पड़ा था। क्यों? किसान ने अब देखा कि किसान ने देखा कि उसके अधिकार थे और उनकी रक्षा भी हुई है। उन्होंने साहस सीखा, अपने लिए लड़ना सीखा। घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को उचित ठहराया और कुछ वर्षों में ही ब्रिटिश भूस्वामियों ने अपने विशाल भूखंड छोड़ दिए। अपनी जो वहां से था तो सब वहां से चले गए। ये अब किसानों के पास लौट गए। नील की बटाई की खेती अदृश्य यानी कि गायब हो गई। Gandhi ji wanted to do something to remove the culture and social backwardness in the Champaran village. He appealed for teachers, two young disciples of Gandhi, Mahadev Desai and Narhari Parikh, and their wives volunteered for work. Several more came from Bombay, Pune, and other distant parts of the land. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram, and so did Mrs. Gandhi. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. Health conditions were miserable. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. Free medicines were available: castor oil, quinine, and sulfur ointment. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. One woman told Kasturba that she had only one sari. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram and sent regular instruction by mail. गांधी जी ने अ, जो चंपारण के जो गांव थे उनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन थे उनको हटाने के लिए गांधी जी बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने अध्यापकों से प्रार्थना भी करी थी। उन्होंने प्रार्थना भी करी थी अध्यापकों से कि गांधी जी के जो दो युवा शिष्य थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, और उनकी पत्नियों ने भी वॉलंटियर काम किया था, अपने संघ को पेश किया था इस कार्य में। और कई अन्य लोग भी थे जो मुंबई से, पूना से और देश के दूसरे सुंदर भागों से आए हुए थे। गांधी जी का जो सबसे छोटा पुत्र था देवदास आश्रम में आया और तथा उनकी श्रीमती गांधी भी आई। 6 गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गईं। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक सफाई के विषय में भी आश्रम के नियम सिखाए थे। स्वास्थ्य की स्थितियां दयनीय थी। गांधी जी ने एक चिकित्सक से स्वेच्छा से उसकी सेवाएं प्राप्त कर ली थी 6 महीने के लिए, और 3 दवाइयां भी उपलब्ध थी। अरंडी का तेल था, कुनेन था और गंधक की मलहम। गांधी जी का ध्यान स्त्रियों के गंदे वस्त्रों की दशा की ओर भी गया। एक किसी ने कस्तूरबा को बताया भी था कि उसके पास सिर्फ एक ही साड़ी है। चंपारण में लंबे प्रवास के दौरान गांधी जी ने आश्रम पर दूरी से चौकसी रखी और डाक द्वारा नियमित निर्देश भेजे गए थे वहां पर। The Champaran episode was turning point in Gandhi's life. It did not begin as an act of defense. It grew out of an attempt of lessening and suffering of the poor peasants. Gandhi's politics was closely connected with the practical day-to-day problems of the village. He tried to mold a new free Indian who could stand on his feet and thus make India free. Gandhi also taught his followers a lesson in self-reliance. Gandhi's lawyer friends thought that it would be a good idea for Charles Freddie Andrew, the English pacifist, to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi opposed it forcefully.
He said, "The cause is just, and you must rely upon yourself to win the battle." Thus, self-reliance, Indian independence, and help to share proper were all bound together. तो चंपारण में गांधी जी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, मोड़ वाला बिंदु था। अवज्ञा के रूप में उन्होंने आरंभ किया था, नहीं हुआ था। और ये जो निर्धन, जो पुअर पीजेंट से किसान थे, उनको उनके कष्ट करने का कोशिश वो बहुत किया करते थे। देन गांधी जी के जो राजनीतिक करोड़ों लोग थे, दैनिक समस्याओं में पड़े हुए थे, व्यवहारिक रूप से जुड़ी हुई समस्याएं भी थी उनकी। उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारतीयों को आकार देने की चेष्टा की थी, प्रयास किए थे कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और लोग अपने लिए सोचे। इस प्रकार वो भारत को स्वतंत्र यानी कि फ्री इंडिया करा सके। गांधी जी अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया कि भी तुम लोग खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, अपने राइट्स को समझो। गांधी जी के वकील मित्रों ने भी सोचा कि ये अच्छा होगा कि भाई शांतिवादी यानी कि चार्ल्स विलर एंड चंपारण ठहरे और एंड्रयू आए और उनकी सहायता करें। यदि गांधी जी मान जाते हैं तो एड्स तो सहमत थे। लेकिन गांधी जी ने उनका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा, मकसद न्यायोचित है एंड तथा युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। अतः आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता तथा बटाई में खेती करने वाले सभी एक साथ बंधे हुए हैं। तो ये इनकी एक तरह से कहावत थी, इनके नोट्स कोट थे जो उन्होंने एंड में कही है। So he said, I'll explain again. He said, read our minds correctly, Rajendra Prasad comments. And we had no reply. Gandhiji in this way taught us a lesson of self-reliance. Self-reliance क्या होती है? जब इंडियन इंडिपेंडेंस आपको मिलती है और आप हेल्प करते हो, अपने ऊपर खड़े हो जाते हो, अपने एक दूसरे से बंधे रहते हो। ठीक है। दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ इंडिगो, जो एक थोड़ा सा पार्ट दर्शाया गया जो गांधी जी ने क्या क्या कार्य किए थे हमारे इंडियन किसानों के लिए। तो दिस वॉज द स्टोरी। होप यू लाइक इट। अगर कोई क्वेश्चन है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर दैट। एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर another lessons. Thank you.